Century Paper and Board Mills Limited, Corporate Briefing 2022-2023. ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome all to the corporate briefing session of Century Paper and Board Mills. With me, I have online we have our CEO Aftab Ahmed Saab, and then on my right hand side we have a Director Marketing Tanveer Sahab, and on my left side is the CFO, and again on the right side far is the Mansoor Ahmed Saab. My name is Aga. So we will conduct the corporate briefing session for the company, and thereafter we will open floor for the question and answers. ठीक है जी. So बिस्मिल्लाह करें. चलें जी. So today's corporate briefing will be covered jointly by Tanveer Saab and myself with the help of CEO Saab. The first part will be covered by Tanveer Saab, Director Marketing. Sir, floor is for yours. Thank you very much, Rashtam. We have distributed the whole presentation into 4 parts. First is the introduction of the company, then strategic and operational developments, then financial performance, and the last part is the question answer. If you have any questions on the presentation, you can ask the questions. First, hopefully most of the participants have received this presentation in advance, and most of you have read it. But just for information, I would like to give a brief information which is written in the presentation. In company presentation, as most of the participants know, that Century is part of Lexan Group of companies. Lexan Group of companies is in various businesses. It is in soaps and detergents. It is in toothpaste. And it is in internet services, in cloud computing, printing and packaging, agriculture and food. Most recent is airline. तो ये है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सेंचुरी लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है, और लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज 1954 से बिजनेस स्टार्ट किया, और इस वक्त ये सोप्स में भी है, डिटर्जेंट्स में है, टूथपेस्ट, इंटरनेट सर्विसेज, पेपर एंड पेपर बोर्ड, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, फूड और फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, एग्रीकल्चर में भी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में है, और ट्रेवलिंग और टूर ऑपरेशंस के अलावा एयरलाइन बिजनेस में भी अब आ गए. इसकी मेजर कंपनीज जो हैं, कोलगेट पामोलिव है, मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान की फ्रेंचाइज है, फ्लाई जिना है, उसके बाद सेंचुरी पेपर है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट है, ट्रिब्यून है, सेबरनेट है, लेक्सन बिजनेस सॉल्यूशन, मेरिट पैकेजिंग, एक्यूरेट सर्जिकल. दीज आर द मेजर कंपनीज इस ग्रुप के प्रोफाइल में हैं. अब हम आते हैं सेंचुरी पेपर के ऊपर. तो सेंचुरी पेपर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और 1984 में ये लिस्टेड हुई थी, और दिस इज द लार्जेस्ट पेपर एंड पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द कंट्री. और सेंचुरी इज द मार्केट लीडर इन पैकेजिंग बोर्ड्स इन पर्टिकुलर, and Century is also producer of quality corrugated cartons for the multinationals and national companies. Century's current capacity to produce paper and paper board is 274,000 tons, metric tons per annum, and to convert boxes, corrugated carton, around 40,000 tons per annum. As regards energy capacity, we have energy capacity to produce electricity up to 63 megawatt and steam over 200 tons per hour. Century plant is situated on the area of 171 acres, which is equivalent to 57 hectares. And currently, Century's direct employees are 1,650. And indirect employees through contractual employees are over 1,000. Let's move forward to the major milestones regarding the production capacity.
1990 में हमने कमर्शियल प्रोडक्शन जब स्टार्ट की तो उस वक्त 3 मशीनों के साथ टोटल कैपेसिटी वाज 30,000 टन्स. After 7 years in 97 we added another board machine और हमारी कैपेसिटी 66,000 हो गई. 2006 में 80,000 हो गई और eventually to date currently our installed capacity is 274,000 tons. We started with 30,000 tons and now the capacity is 274,000 tons. These are the major milestones regarding the capacity enhancement. Other milestones in 96 जब national grid से power के issues आने शुरू हुए तो company added a cogen plant of 12.3 megawatt in 1996. उसके बाद effluent treatment to make the company environment friendly है. First dissolved air flotation plant जो था वो 2002 में लगाया गया. 2003 में corrugated carton business को add किया गया, एक नई business line. फिर उसके बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनहांस कैपेसिटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कोजन प्लांट 20 मेगावाट का गैस टरबाइन का लगाया गया. और 2016 में एक्यूट एनर्जी क्राइसिस और एनहांस डिमांड को पूरा करने के लिए, एनहांस कैपेसिटी की नीड को पूरा करने के लिए कोजन 3 एक 18 मेगावाट का कोल फायर प्लांट लगाया गया. और 2020 में 3.7 मेगावाट की सोलर प्लांट को ऐड किया गया. और 2020 में सोलर प्लांट ऐड किया गया 3.7 मेगावाट का. अब हम थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे दें कि कंपनी पेपर एंड पेपर बोर्ड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है. 3 मेन कैटेगरीज हैं जो मेजर कैटेगरीज हैं. वन इज कंटेनर बोर्ड. कंटेनर बोर्ड इज द पेपर एंड पेपर बोर्ड विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कारुगेटेड कार्टन, मास्टर कार्टन जिसको शिपिंग कार्टन कहते हैं. दिस इज वन लाइन. और एक जो मेजर प्रोडक्ट है जिसमें वी आर मार्केट लीडर, दिस इज कोटेड पैकेजिंग बोर्ड. ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होता है जो आपकी कंपनी बनाती है. और इस प्रोडक्ट के साथ मुख्तलिफ प्राइमरी पैकेजिंग जो फोल्डिंग कार्टन्स हैं, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो बिस्किट्स हैं, कन्फेक्शनरी है. तो आप किसी भी सुपर स्टोर पे जाते हैं तो जिस पैकेजिंग में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उसका बेस बोर्ड जो होता है वो पैकेजिंग बोर्ड होता है और मोस्टली वो सेंचुरी का होता है. तो पैकेजिंग बोर्ड है. उसके बाद तीसरी मेजर कैटेगरी जो है वो आपकी कंपनी बनाती है वो पेपर है. पेपर हम सुपीरियर क्वालिटी का पेपर बनाते हैं जो पेपर यूज होता है एक्सरसाइज बुक में, एक्सरसाइज बुक्स में, पब्लिशिंग में और फोटोस्टेट कॉपीज पे. अब ये सारी कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मुख्तलिफ मेजर जितने भी पाकिस्तान के बड़े प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउसेज हैं वो हमसे परचेज करते हैं और वो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स और नेशनल कंपनीज की पैकेजिंग को बनाते हैं. हमारे मेजर एंड यूजर या कस्टमर्स ये है यूनिलीवर, कॉलगेट, रेकेंट, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, नेस्ले. मतलब जो अभी मेजर ब्रांड्स पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है उनकी पैकेजिंग के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज किया जाता है. नेक्स्ट ये की मैनेजमेंट टीम हमारे साथ लाइन पे हमारे सीईओ हैं मिस्टर आफ्ताब अहमद. ये बाकी लोग हैं जहां से साहब इज डायरेक्टर ऑपरेशंस, शेख नदीमुल्लाह साहब डायरेक्टर इंजीनियरिंग, तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हैं, राशिद साहब और बाकी ये टीम की मैनेजमेंट पर्सनल हैं. अब स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डेवलपमेंट के ऊपर हम आते हैं. तो इस दौरान हमने जो डेवलपमेंट्स की, पहले आपको टोटल नेशनल कंजम्पशन की सिचुएशन बता दें कि पाकिस्तान की टोटल पेपर एंड पेपर बोर्ड की कंजम्पशन जो है इसमें ये 2 मिलियन टन को टच एक आध साल पहले की भी थी, इससे पहले भी. लेकिन ये क्योंकि मार्केट में क्योंकि पेपर एंड पेपर बोर्ड की कंजम्पशन डिपेंडेंट है उनकी आपकी जीडीपी के ऊपर,
तो जीडीपी अगर कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहे तो इसमें फर्दर ग्रोथ आती रह सकती है, लेकिन कोविड से पहले एकदम डिप आया और ये 1.7 मिलियन पे आ गई, फिर 5% की ग्रोथ आई, तो इस वक्त भी क्लोज टू 2 मिलियन है टोटल पेपर एंड पेपर बोर्ड की कंजम्पशन, जिसमें से 78% डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरा कर रही है और 22% जो है वो इस साल में भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम अपना आपको मार्केट शेयर बताते हैं कि सेंचुरी पेपर का मार्केट शेयर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। टोटल पेपर एंड पेपर बोर्ड कंजम्पशन में सेंचुरी का शेयर जो है वो 11% है ओवरऑल पेपर एंड पेपर बोर्ड कंजम्पशन में, और 22% इज इंपोर्ट एंड 53% इज अदर्स, जो जिसमें मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन हम क्योंकि स्पेशलाइज करते हैं कोटेड पैकेजिंग बोर्ड में, तो नेक्स्ट स्लाइड इज कोटेड पैकेजिंग बोर्ड। कोटेड पैकेजिंग बोर्ड को भी दो कैटेगरीज में हमने डिफरेंशिएट कर दी है। वन इज द कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड, जो कि मोस्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, कन्फेक्शनरी, बिस्किट, टी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें आर मार्केट, वी आर द मार्केट लीडर विद 36% मार्केट शेयर। हमारे से कंपेरेबल प्रोडक्ट्स जो डोमेस्टिक कंपटीशन बनाता है उसका शेयर सिर्फ 10% है और 2% इसमें सिर्फ इंपोर्ट्स हैं। प्रीवियसली जब सेंचुरी ने PM7 लगाई थी तो 80% इंपोर्ट्स थी, तो ग्रेजुअली सेंचुरी ने सारी इंपोर्ट्स को रिप्लेस किया और बाकी जो 52% है ये कंपेरेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपैरेटिवली लो कास्ट लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये मोस्टली इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो वी आर मार्केट लीडर इन दिस कैटेगरी। कोटेड पैकेजिंग बोर्ड में दूसरी कैटेगरी है फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड की। हमारा इसमें भी शेयर रिजनेबल है विच इज 22%। ये प्रोडक्ट कैटेगरी वो है जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स के ये यूज होती है, जो कॉस्मेटिक्स में, टोबैको में, सिगरेट्स के पैकिंग या कोई एक्सपेंसिव किस्म की फार्मास्यूटिकल्स उसमें यूज होती है। तो उसमें भी हमारा 22% मार्केट शेयर है, लेकिन उसमें मेजर शेयर इंपोर्ट्स का है। 56% शेयर इंपोर्ट्स का है फ्रॉम मोस्टली चाइना। अब आपकी कंपनी ने पिछले 3 साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तकरीबन 4 बिलियन का, उसमें 71% एक्सपेंस जो हुआ है वो कैपेसिटी इनहेंसमेंट पे हुआ है, जिसके साथ आपके कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। और रेस्ट 29% जो है उस कथा के बाकी BMR प्रोजेक्ट्स है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ी गई। जो बॉटलनेक्स थे स्टॉक प्रिपरेशन में, प्रोसेस अपनी इस एनहांस कैपेसिटी को फीड करने के लिए रॉ मटेरियल के, उनको अपग्रेड किया गया। फिर उसका जो क्वालिटी कंट्रोल और ऑटोमेशन के पार्ट थे वो किए गए, और फिर फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस इतनी कैपेसिटी जब होगी तो उसको फिनिश करके फिनिशिंग हाउस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट इस 29% में वो प्रोजेक्ट्स किए गए। अब एक आपको सिंपल सा एक पिक्टोरियल दे देते हैं। ये आपकी मशीन है PM7, ये हमने जो एड ऑन किया उसमें बॉक्स प्लांट की कैपेसिटी जो फिनिशिंग की हमने बढ़ाई, फिर बिल ब्रेकिंग मशीन एक लगाई, शीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई, एक 16 मेगावाट का नेशनल ग्रिड को ऐड किया, और ये सारी ऑटोमेशन की जो चीजें थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बता रहे हैं कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है इस वक्त जो हमने आपसे शेयर की है विच इज 274,000 टन पर एनम। इस कैपेसिटी का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह है, क्योंकि हमारी जिस तरह हमने कहा कि वी आर मार्केट लीडर इन कोटेड पैकेजिंग बोर्ड। इन कोटेड पैकेजिंग बोर्ड our capacity is 220,000 ton which is 81% of our total capacity। तो इस कैपेसिटी को भी फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि हमारी इस कैपेसिटी का 174,000 टन की कैपेसिटी, 64% कैपेसिटी इज फॉर डुप्लेक्स बोर्ड, जो कि ग्रोइंग मार्केट है और पाकिस्तान में उसकी कंजम्पशन भी है, और 17% इज कैपेसिटी इज डेडिकेटेड टू दी फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड।
उसके बाद कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स की और उसके साथ जो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है कि एनर्जी मिक्स को बेहतर किया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा जो ग्रिड स्टेशन 5 मेगावाट का था उसको अपसाइज कराने के लिए इट वाज अ बिग एफर्ट, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी थी और बहुत सारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी थी। तो उनको मीट करते हुए इसको अपग्रेड करा के 16 मेगावाट के ऊपर नेशनल ग्रिड से हमें अब एनर्जी अवेलेबल है। उसके बाद हमने एक लो कास्ट यूजीडीसी यूनिवर्सल गैस डेवलपमेंट कंपनी से गैस की है, जो कि 15 से 20% एलएनजी से हमें लो कास्ट करेगी। इसके अलावा एनर्जी को और इकोनोमाइज करने के लिए हमने लोकल कोल मेनली थर उसको भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसके बाद हमने एक आउटसोर्स किया बॉयलर जो कि लो कास्ट स्टीम हमें देगा बायोमास बेस्ड, और हमने बीएमआर और ये टर्फ के दौरान हमने एक कोल फायर बॉयलर भी ऐड किया है टू रिड्यूस एंड टू नॉर्मलाइज आवर एनर्जी कास्ट। अब हमारे मुख्तलिफ सोर्सेज से जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, इस वक्त हमारे पास 61 मेगावाट के टोटल हम पावर जनरेट कर सकते हैं विद डिफरेंट फ्यूल्स, और ये फ्यूल्स हम उस वक्त हमारी पीक रिक्वायरमेंट 25 से 28 मेगावाट की होती है, और जो चीपेस्ट पॉसिबल फ्यूल हो उसके साथ हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो गई है कि हम उसके साथ कर सकते हैं। इन द सेम फैशन स्टीम हम जो है हमारे कोजेन प्लांट्स हैं उनके साथ स्टीम जो है वो जनरेट होती है, और स्टीम में से हम स्टीम तो 200,000 टन प्लस की हमारे पास स्टीम की कैपेसिटी है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऑन एनी गिवन टाइम 100 के अराउंड होती है। तो इसमें भी हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट कर ली गई है ताकि जो भी फ्यूल सोर्स सस्ता हो मोस्ट वायबल हो उसको इस्तेमाल किया जाए। एज रिगार्ड एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन का जो है, उसमें हमने ये अपने गोल्स सेट किए हैं, ये आपने दफ़ा ग्लांस कर लिए होंगे, और इसमें से हम अपने इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारी एक्टिविटी जारी है। और इस एक्टिविटी में मेजर कुछ हाइलाइट्स आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर एनवायरनमेंट। उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन और एनर्जी, इसमें एनर्जी और वाटर की कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर हमारा काम हुआ है जो हम आपको बताएंगे अभी। अवेयरनेस कैंपेन्स, इन सब चीज़ों के लिए हमारे वो एक रेगुलर प्रोसेस है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, उसके लिए सोलर पैनल हमने ऐड किए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने एक्टिविटी की, डेफ हमारा उसमें चल रहा है। हेल्थ और सेफ्टी जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, विच इज पार्ट ऑफ दिस। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के लिए सीपीबी हमने सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया डिजॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन का, वो हमने 2002 में इंस्टॉल किया जिसकी कैपेसिटी 600 क्यूबिक मीटर पर आवर थी। उसके बाद एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो 2016 में ऐड किया गया जिसकी कैपेसिटी 350 क्यूबिक मीटर पर आवर थी, और सेकंड जो है वो इन प्रोसेस है जो कि इस वक्त उसका एक्टिविटी ऑन है, वो मजीद उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे फैक्ट्री से जो भी पानी निकल रहा है कि वो ट्रीटेड ड्रेन हो और वो रीयूज विद इन फैक्ट्री हो जाता है। इसके बाद क्लीन एनर्जी के लिए हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किए। हमारी फैक्ट्री की कोई छत खाली नहीं है, सबके ऊपर सोलर पैनल है, और ये एनर्जी 3.7 मेगावाट सोलर एनर्जी अवेलेबल हो रही है हमारे सिस्टम में। अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते रहते हैं, इंटरनेशनल अवेयरनेस डे एनवायरनमेंट के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। अब इन सब चीज़ों के बाद हमने जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड हैं, हम 1998 में QMS ISO की सर्टिफिकेशन हुई थी, 2006 में EMS ISO 14000 की, 2011 में, और अभी हमने रिसेंटली 2020 में FSC की सर्टिफिकेशन भी ले ली है, और उसके बाद 2023 में हमने ये भी ले ली है सर्टिफिकेशन। तो ये कंटिन्यूसली जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो हम अचीव करते जा रहे हैं।
इसके अलावा हमारी जितनी मल्टीनेशनल्स के साथ हम काम करते हैं वो अपना एक थर्ड पार्टी ऑडिट्स करवाते हैं मुख्तलिफ कंपनी, जिसमें फिलिप मॉरिस है, पाकिस्तान टोबैको है, यूनिलीवर है। तो जितनी मल्टीनेशनल्स हैं वो अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से हमारे पूरे सिस्टम को वैल्यूएट कराती हैं, और वो हमने सारे ऑडिट क्वालिफाई किए हैं। सेडिक्स है, तो ये जितने ऑडिट्स हैं ये इंटरनेशनल कंपनीज ने किए हैं, और इसमें क्वालिटी, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एथिकल, तो ये हमारे मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं जिनकी लिए हमें ये एक्सटर्नल ऑडिट्स अपने करवाने पड़े हैं, और उन सब ने हमें सर्टिफाई किया है। अब इस सारी चीज़ों के साथ ये है कि हमें मुख्तलिफ रिकग्निशंस भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से लेके और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिकग्निशन भी मिली है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। पहले तो हम उसमें हमारे चेयरमैन इकबाल अली लखानी, उनको 2019 में प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से 17 इम्तियाज मिला फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज के लिए। हमें यूरोपियन अवार्ड मिला वाटर एफिशिएंसी के लिए। हमने इसमें एक दफ़ा हमें बेस्ट कॉर्पोरेट अवार्ड जो है मल्टीपल टाइम मिला है, लास्ट हमें 2022 में मिला है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के ऊपर तो कंटिन्यूअसली ये सारे अवार्ड्स और ये सेफ्टी के ऊपर और ये हमें मल्टीपल टाइम्स मिले हैं, और मोस्ट रिसेंट अवार्ड्स भी इसमें रिसेंट ईयर्स में भी यही अवार्ड्स मिले हैं। आप ग्लिम्पसेस आपको दिखा देते हैं कि रिसेंट ईयर में ये 5 अवार्ड्स जो हमें मिले हैं, जो रिपीटेडली हमें मिलते रहे, नेशनल फोरम से, नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से, प्रोफेशनल नेटवर्क से, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से और ICAP से। तो ये सारे अवार्ड्स सेंचुरी को अब हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली CSR एक्टिविटी चलती रहती है। एजुकेशन के लिए जो फैक्ट्री के इन्वायरमेंट में है, लोगों की ट्रेनिंग के लिए, एम्प्लॉइज के बच्चों की कंप्यूटर लिटरेसी के लिए फ्री कोर्सेज उधर कैंप लगते हैं, और ये CSR की टोटल एक्टिविटीज उधर चल रही है। तो नेक्स्ट पार्ट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो आपने अपने एनुअल रिपोर्ट से भी देख ली होगी। तो नो आई रिक्वेस्ट राशिद साहब टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। तो आपने जो रंगीन चीजें थी वो देख ली है, तो अब संगीन चीजें मैं दिखा दूंगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो है हमने 6 ईयर का डेटा प्लॉट किया है कि पिछले 5 साल का, कि 5 साल में ट्रेंड किस तरह रहा है। तो इसमें प्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 18-19 से लेकर 21-22 तक जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90% से ऊपर ही रही है। तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी भी बढ़ रही थी और प्रोडक्शन भी हमारी इंक्रीज हो रही थी। तो 21-22 तक यही ट्रेंड रहा, लेकिन जो 22-23 है ये साल थोड़ा सा, जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे मुल्की हालात भी थे उसमें भी बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई कि जिसने हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट किया, जिसमें आपकी डॉलर एक्सचेंज रेट की या रुपये की डेप्रिसिएशन भी थी, फिर आपका इन्फ्लेशन भी था, सप्लाई साइड इश्यूज भी थे और डिमांड साइड भी थे के बीच में जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन थी उसने दिसंबर ऑनवर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिर वो जो पीछे से एक हैवी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा था, तो उसकी वजह से जो मासेस की परचेजिंग पावर है उस पर भी यकीनन असर पड़ा, तो जिसकी वजह से डिमांड साइड पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो जिसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इस साल में ड्रॉप हुई, लेकिन नेवरदलेस इसमें हमने उन प्रोडक्ट को ज़्यादा टारगेट किया कि जिसमें कुछ कंपैरेटिवली अच्छे मार्जिन थे, और हमने 196,000 की प्रोडक्शन की। और इसके अलावा ये 196,000 की प्रोडक्शन आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब आप सेल देखते हैं तो वो है 207,000। तो उसकी वजह से एक ये भी है कि जो हमारी बॉक्स प्लांट की सेल होती है तो पहले हम उसको इन हाउस ही पूरा का पूरा उसका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इस साल में हमने कुछ जो रॉ मटेरियल था वो आउटसोर्स भी किया, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन में तो डिप आई, लेकिन सेल जो थी वो उससे बेहतर ही है। और जो ग्रॉस सेल है वो हमने वो वैल्यू जो है वो इम्प्रूव हुई है, और ग्रॉस सेल 56 बिलियन है जो लास्ट टाइम 45.5 बिलियन थी।
ये जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, इसमें हमने ट्रेंड बताया है कि हमारी कॉस्ट कैसे बढ़ी और सेल्स कैसे बढ़ी और जीपी जो है वो कैसे उसमें हमने अर्न किया। तो 18-19 से लेकर ये ग्रेजुअली 2021 तक ये बढ़ा। 21-22 में थोड़ा सा जीपी श्रिंक हुआ और 22-23 में कुछ फर्दर जीपी श्रिंक हुआ। और इसकी मेन रीजन यही थी कि जो कॉस्टें थी वो मुसलसल बढ़ती गई। रॉ मटेरियल की कॉस्टें भी बहुत बढ़ी और उसमें डॉलर पैरिटी का भी एक इम्पैक्ट था। और उसके अलावा जो एनर्जी कॉस्ट थी वो भी इन 2 सालों में काफी ज्यादा एस्केलेट हुई, क्योंकि उसमें जो एनर्जी के डिफरेंट फ्यूल थे उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा, उसमें एक कंसिडरेबल इंक्रीज था, क्योंकि इंपोर्टेड कोल की प्राइसेस भी बढ़ गई थी, अफगानी कोल की भी बढ़ी। आरएलएनजी ऑलरेडी एक हायर रेट पे होती है, तो जिस वजह से ये भी कॉस्ट बढ़ी। तो हमने उसको पास ऑन करने की कोशिश की जितना मुमकिन था, लेकिन फिर भी उसमें वो जीबी पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। राइट साइड पे जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इप्टिडा है जो एक फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि डिक्लाइन इसमें भी है, लेकिन स्टिल जो नंबर है 22-23 का 4.5 बिलियन, तो ये एक रीजनेबल नंबर है। 2% में इसमें एक डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट में बात करें परसेंटेज ऑफ सेल, तो इसमें हाईएस्ट 2021 में था जो 20% था, फिर एक उसमें डिक्लाइन आया ड्यू टू द रीजन जो पहले मैंने आपको बताई। तो 13% ये 21-22 में था और 22-23 में ये 9% पे चला गया। और इसी तरह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 21-22 में 10% था, तो 7% पे जो है वो 22-23 में रहा। तो कोई 2% के करीब, हमारे 2-2.5% के करीब अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें कुछ आइडिया देने की कोशिश की है कि कैसे डिफरेंट फैक्टर ने हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को के ऊपर असर डाला है। तो इसमें रॉ मटेरियल रेट में आप देखते हैं तो काफी 9.5 बिलियन का इम्पैक्ट है, काफी मटेरियल इम्पैक्ट है। फ्यूल एंड पावर में भी 3.5 बिलियन का है। कुछ इम्पैक्ट हमें डिक्लाइन इन सेल वॉल्यूम की वजह से भी पड़ा। तो लेकिन ये जो रॉ मटेरियल रेट और फ्यूल पावर का इम्पैक्ट था, तो उसको हमने रिवीजन इन सेलिंग प्राइसेस से कंपनसेट करने की कोशिश की। और डिस्पाइट दैट, लेकिन जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो 530 मिलियन से उसमें डिक्रीज आया। ये फाइनेंस कॉस्ट आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है कि वो 1920 के बाद जिस तरह से रेट पॉलिसी रेट नीचे आए थे, इंटरेस्ट रेट नीचे आए थे, तो 2021 और 2022 में काफी ये एक कंट्रोल और कंटेन थी। लेकिन फिर 22-23 में जिस तरह से रेट 21-22 में ही बढ़ना शुरू हुए थे, तो अगर 14% ये साल के शुरू में थे तो 22% साल के आखिर में हो गए। तो इसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट होती वो बढ़ी। और इसके अलावा उसमें ये भी हुआ कि कुछ इन्वेंट्री बिल्डअप की वजह से फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हमारी यूटिलाइजेशन ज्यादा थी, लेकिन उसको फिर ग्रेजुअली वो रिड्यूस कुछ हालात की वजह से भी हो गई और कुछ हमने भी कोशिश की, जिसकी वजह से वी एंड अप विद द 2 बिलियन। और अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट है तो वो हमारा 20-21 में हाईएस्ट था, बेस्ट था 2.96, फिर वो 2.2 21-22 में हुआ। और बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स के जो कॉस्ट फैक्टर ऑफ फाइनेंस कॉस्ट हैं, तो वो 22-23 में 905 मिलियन। और इसी तरह से जो हमारी ईपीएस है वो हाईएस्ट हमने 20-21 में रिपोर्ट की थी 7.37, 21-22 में थोड़ी सी कम हुई 5.51 और 22-23 में ये 2.25 है। और ये हमारा जो इंक्रीज शेयर कैपिटल है कोई 400 मिलियन का या 4 बिलियन का, 400 मिलियन शेयर है और 4 बिलियन उसके ऊपर है 2.25। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप देख रहे हैं कि वो 7% है 22-23 का, जो कि 21-22 में 18%। ये जो हमने पिछले 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी समरी है। 21 में हमने 265 मिलियन का कैश और 265 मिलियन का ही जो है वो स्टॉक बोनस शेयर दिए थे। फिर 22 में हमने 10% के बोनस शेयर दिए और फिर 22-23 में हमने एक 80% का बोनस शेयर किया जून में, ताकि हमारा कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व जो है उसमें एक तवाजुन आ जाए।
तो ये कुछ डिटेल थी और आप क्वेश्चन एंड आंसर सवालों जवाब के लिए हम हाजिर हैं, आप सवालों जवाब पूछ सकते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? वैसे आप जवाब देंगे? ये आफ्ताब साहब। मैं जवाब देता तो अच्छा, एक छोटा सा मसला है कि आप सबकी तो आवाज़ मुझे आती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले की आवाज़ इतनी आसानी से माइक बेहतर रख ले उनके पास, उनका लेकिन सवाल सवाल ये था कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं। जी सर। तो हमारे एक तो रॉ मटेरियल है जो फाइबरस मटेरियल है, जो वो एक इंडिजिनस पल्प है, यानी जो हम पेपर के लिए पल्प खुद बनाते हैं, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो व्हीट स्ट्रॉ है, वो लोकली अवेलेबल है। और उसके साथ जो और चीज़ें लगती हैं वो भी ICI से हम सोडा ऐश ले लेते हैं, सितारा केमिकल से हम ले लेते हैं, कास्टिक सोडा ले लेते हैं। तो सारी पल्प मिल की सारी चीज़ें जो हैं वो तो लोकल हैं। सेकेंड हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट पेपर है, वो भी सब्सटेंशियली हम लोकली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ क्योंकि बाहर वो सस्ता मिल जाता है तो उसको हम इंपोर्ट भी करते हैं वेस्ट पेपर को, जिसकी हम रिसाइकलिंग करते हैं। और थर्ड रॉ मटेरियल जो है वो वुड पल्प है। तो वुड पल्प जो है वो तो पाकिस्तान में होती नहीं है, तो वो जो वुड पल्प है वो हम ब्राज़ील से, कनाडा से और स्कैंडिनेविया कंट्री से और न्यूजीलैंड से लेते हैं। इसके अलावा कुछ एडिटिव्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, लेकिन मेन रॉ मटेरियल यही रहती है। या फोटो कॉपी का पेपर भी बनाते हैं? हाँ जी, हम फोटोकॉपी का पेपर भी बनाते हैं, और बल्कि काफ़ी बस का सिर्फ मेरे ख्याल में 20% से भी शायद कम ही है, 17-18% ऑफ आवर बिजनेस इज पेपर। अच्छा, 2020-21 में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था वो ऊपर गया था, काफी कर्व अपवर्ड कर्व था, उसके बाद ये कर्व नीचे आ गया, तो उसकी मेन वजूहत क्या है? उसमें क्या पॉलिटिकल चेंजेस जो है उसका भी इम्पैक्ट है? मुझे सवाल की समझ नहीं आई, आप तनवीर आप रिपीट कर दो। 2020-21 में जो आपका प्रॉफिट था उसका जो रेशियो था वो काफी ऊपर गया, जो आपका जो ग्राफ था वो अपवर्ड शो हो रहा था, उसके बाद में नीचे ये आया, डायरेक्ट स्लोप आया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं? मुझे ये समझ आई है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 2 साल पहले ज्यादा था और फिर कम हो गया, और क्यों हो गया? दिस इज द क्वेश्चन। जी बिल्कुल यही सवाल है इनका। हाँ, तो जैसा आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, हमें 2-3 जगहों पे मुश्किलात पेश आई। एक तो एनर्जी की चीज़, एनर्जी सडनली महंगी हो गई, और यानी साइमल्टेनियसली कोयला भी महंगा हो गया, साइमल्टेनियसली गैस भी महंगी हो गई, फर्दर ऑयल भी महंगा हो गया। तो अजीब बात यह है कि जो हमारा सेल्फ जनरेशन का प्लांट था जो कि एक्सट्रीमली एफिशिएंट चल रहा था पिछले 15-20 साल से, वो ज़्यादा महंगा हो गया, और जो ग्रिड की जो पावर थी वो सस्ती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रिड पावर को लेने के लिए हमारा जो ग्रिड स्टेशन था वो इतनी पावर ले नहीं सकता था, और हमें उसके ऊपर उसको मुकम्मल करने में साल ही लग गया तकरीबन, क्योंकि गवर्नमेंट से काम करवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब वो काम हो चुका है। दूसरी बात ये थी कि ओवरऑल जो मार्केट भी खराब हुई, हमारे कस्टमर का भी बिजनेस कम हुआ, तो हमारे जो थे वॉल्यूम भी कम हुए और हमारे मार्जिन भी कम हुए, और फाइनेंशियल कॉस्ट भी। हाँ जी, माइक वेस्टेज का कितना परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं? 80%। सर ये पूछ रहे हैं कि वेस्ट पेपर कितने परसेंट है आपकी टोटल कंजम्पशन? देखिए वेस्ट पेपर जो होता है ना वो अगर उसको देखा जाए कि उसका वजन गेट परचेज के ऊपर
तो मेरे ख्याल में वो तो कोई 75% होगा, क्योंकि उसकी आगे से 80% यील्ड होती है। तो लिहाजा अगर मैं 75% कह रहा हूँ तो समझे कि मैं 60% कह रहा हूँ। तो वेस्ट पेपर सबसे ज़्यादा लगता है, वैल्यू वाइज भी उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। इट इज़ फॉलोड बाय वुड पल्प एंड देन थर्ड इज द व्हीट स्ट्रॉ, जो हमारी इंडिजिनस पल्प है। Thank you very much. Aftab sir, there are some online questions. So I would like to just put up in here for your reply. One is, what was your power mix for financial year 2023? And what was your core mix for the year 2023? मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई आपने क्या कहा। आपका सवाल हो रहा है कि हमारा power आपकी mix, आवाज नहीं, पार्टनर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे। मैं करता हूं, मैं सर सवाल ये है कि पावर मिक्स जो था वो कोल के ऊपर क्या था और वापडा के ऊपर क्या था और गैस के ऊपर क्या था, हमारा एनर्जी मिक्स या फ्यूल क्या था? क्या था कि क्या है? जी, क्या था क्या तो ये था? है कि क्या था तो ये है कि सबसे ज्यादा तो आई वुड से कि 70% तो कोल ही था, क्योंकि कोल इज यूज्ड आल्सो फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज स्टीम बनाने के लिए। और उसके बाद गैस थी, और जो ग्रिड स्टेशन था वो तो बहुत ही मिनिमल था, क्योंकि वो तो अंडर 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 मॉडिफिकेशन था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारी सेल्फ जनरेशन और गवर्नमेंट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो 60%, 55% हम जनरेट कर रहे हैं और 45% हम ग्रिड से ले रहे हैं। लेकिन स्टीम बनाने के लिए तो कोल ही यूज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। भाई एक और क्वेश्चन है कि आपका, can you please share reason for the huge uptick in raw material cost in the financial year 23? क्या वजह हुई, हाँ, क्या वजह हुई कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया? जी हाँ, इस साल। हाँ, तो उसकी वजह यही है कि जो तो इम्पोर्टेड, अब इम्पोर्टेड तो डॉलर से जुड़ा हुआ था, तो दूसरा ये था कि अब बाहर की जो लोकल जो हमारे रॉ मटेरियल थे, तो लोकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई। तो हमारा हर रॉ मटेरियल, यानी आप ये कहें जो व्हीट स्ट्रॉ हम खरीदते हैं उसकी प्राइस 50% इंक्रीज कर गई पिछले साल से। यानी जो कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो गंदम नहीं है, वो तो एक उसका एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बावजूद उसकी प्राइस 50% इंक्रीज हो गई। लोकल थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब। सो आपका सवाल जी प्लीज पूछें। एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछना था कि आपकी जो पर टन की प्रोडक्शन होती है उसके लिए कितनी एनर्जी ऑन एवरेज रिक्वायर्ड होती है? आफ्ताब साहब सवाल आपको रिपीट करता हूँ। इनका सवाल ये है कि पर टन हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें एनर्जी की कंजम्पशन कितनी है, राइट? ओके, कंजम्पशन को बताने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ये कहूँ कि मेरी एनर्जी कास्ट जो है वो कोई 25% चली गई थी, जो कि अब 20% हो गई है। वैसे अगर आप पूछें एनर्जी के लिहाज से, तो वो ये है कि मुझे 1 टन प्रोडक्ट बनाने के लिए तकरीबन 700-750 किलोवाट आवर्स दरकार होते हैं, और 1 टन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे तकरीबन 3 टन स्टीम चाहिए होती है। So if I put it this way, Aftab sir, just for the clarity of the audience, कि let's see कि एक हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर if it 1000 rupees, तो let's say 100%, तो उसके अंदर एनर्जी कॉस्ट कितने परसेंट है? I think that मैंने is कहा more. ना कि it is about 21%. Okay, thank you very much. Any other questions? सर दूसरा सवाल ये था कि आपने स्लाइड में दिखाया था कि 1.3 मिलियन की शायद टोटल डिमांड थी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, राइट? और उसमें से 22% मार्केट शेयर इंपोर्ट्स का था। तो और लास्ट ईयर से भी मतलब इंक्रीज आया था ओवरऑल डिमांड के अंदर एज पर योर नंबर्स। तो उसमें लाइक हम सेंचुरी की यूटिलाइजेशन फिर कम क्यों नज़र आ रही थी हमें कि ओवरऑल डिमांड बढ़ रहा और मार्केट शेयर भी उसका फिर कम हुआ और ओवरऑल यूटिलाइजेशन भी कम हुई थी? तो कैन वी सी कि कुछ रिकवरी आ सकती है नेक्स्ट ईयर में या फिर इस साल में? और दूसरा कि मार्केट शेयर इंपोर्ट्स वगैरह का कुछ ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेंचुरी पेपर बोर्ड?
जगताप बिल्कुल साहब मैं जवाब दे दूं? हाँ आप दे दो, चलो तनवीर। जी अच्छा, एक तो ये है कि पिछले साल में जो टोटल मार्केट साइज आपको बताया था ना कि पिछले साल से 3% मार्केट साइज श्रिंक हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की बाइंग पावर कम हुई तो मार्केट साइज थोड़ा श्रिंक हुआ था। हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कम होने की वजह जो राशिद साहब ने बताई, एक तो ये थी कि हमने जो अपने रॉ मटेरियल बनाते थे कारोगेटेड कार्टन्स के लिए, वो हमने खुद बनाने की बजाय चीपर सोर्सेज से लो कास्ट हमने मार्केट से खरीद लिया, आउटसोर्स कर लिया। सेकेंडली ये है कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट सेंचुरी ने डेफिनेटली किया, और आज से 8 साल पहले टोटल कंजम्पशन में इंपोर्ट्स का शेयर 36% था, विच हैज रिड्यूस टू 22%। अब भी फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है, जिस तरह हमने बताया कि एफबीबी जिसमें हमारे पास कैपेसिटी भी है और उसमें अभी 56% इंपोर्ट्स हैं, और उसको हम सब्स्टिट्यूट करने की एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चाइना की चीपर इंपोर्ट्स की वजह से, लेकिन उसमें पोटेंशियल है और सेंची के पास कैपेसिटी भी है, और अगले सालों में फर्दर वो सब्स्टिट्यूट होगी। थैंक यू सर। ओवरऑल पेपर एंड पेपर बोर्ड में कहें तो, क्योंकि उनका मेजर जो प्रोडक्ट है वो है कारोगेटेड कार्टन्स, जो कि ब्राउन वैरायटी होती है। हमारा मेजर प्रोडक्ट है पैकेजिंग बोर्ड, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, तो उस लिहाज से टन्स में तो वो ज्यादा है, क्योंकि कारोगेटेड कार्टन टन्स में स्लाइटली हमसे ज्यादा है, ये एट पार है। तो ओवरऑल पैकेजिंग बोर्ड में मार्केट लीडर हम ही हैं विद 36% मार्केट शेयर। नहीं, रोशन पैकेजेस का कोई कंपैरिजन नहीं, वो तो कन्वर्टर है, वो तो जिस तरह हमारा एक बॉक्स प्लांट है जो कि पेपर बोर्ड खरीद के उससे बॉक्सेस बनाता है, तो रोशन पैकेजेस इज आल्सो आवर कस्टमर, टाइम्स हमसे वो खरीदते भी हैं चीजें। इसका रेट 80-90 रुपए में दिया था, शेयर अभी 8-9 रुपए होगा अभी। हाँ उसके तो जी जी, वो कांट कमेंट ऑन दैट। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। एम आई ऑडिबल सर? आवाज आ रही है सर? सर वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सर। आई हैव फ्यू क्वेश्चन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो मैं आपने जो बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि वेस्ट पेपर तकरीबन 60% यूज होता है, और के अलावा वुड पल्प आप ग्लोबली यूज करते हैं, इसके अलावा स्ट्रॉ से आप पल्प खुद बना लेते हैं। तो सर ये अज्यूम कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है वो 50% होगा और लोकली रॉ मटेरियल 50% होगा, कि इसका कोई और रेशियो है? और सर सेकंड क्वेश्चन है कि आपका फ्यूल मिक्स जो आपने डिफरेंट बताए हैं, करंटली कौन सा चीपर है? फिर आपने कहा कि गैस आपको 20% डिस्काउंट में मिल रही है, लेकिन ये आपने नहीं बताया कि क्या 100% गैस पे चल सकता है आपका? और कोल भी इस वक्त, कोल प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ गई है, तो राइट नाउ क्या चीपर है आपका फ्यूल मिक्स के अंदर में, ये भी बता दें। जो पहला आपका सवाल है ना, उसमें अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो इम्पोर्टेड और लोकल जो है वो आई वुड से कि 50-50 है फ्रॉम दी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फ्रॉम टन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोकल जो है वो कोई 75% है और इम्पोर्टेड जो है वो कोई 25% है। एक ये होगी बात। दूसरा ये है कि हमारा जो प्लांट है वो 100% गैस से भी हम सारा प्लांट चला सकते हैं, और हम 100% कोयले से भी सारा प्लांट चला सकते हैं। हमारा कोयले का प्लांट इतना बड़ा है कि वो पूरी मिल को चला सकता है। हमारा गैस टर्बाइन्स भी इतनी कैपेसिटी की हैं कि सारा प्लांट उससे चल सकता है। इस वक्त जो सबसे सस्ता है वो तो कोल है, और कोल से भी सस्ता है इस वक्त कि हम नेशनल ग्रिड से बिजली लें। तो इस वक्त जब तक नेशनल ग्रिड की कीमत को वो रिवाइज करना चाहते हैं तो शायद वो फिर थोड़ा सा महंगा हो जाए, लेकिन हमारे लिए गैस सबसे सस्ता कोयला है, फिर गैस, फर्नेस ऑयल सबसे महंगा है। सर मेरा एक दो और सवाल आते हैं सर। फोर्थ क्वार्टर सर आपका काफ़ी वीक रहा था, जो कि ट्रांसलेट भी हो गया था पूरे फुल ईयर में, और फर्स्ट क्वार्टर भी सर आपके वॉल्यूम काफ़ी सिग्निफिकेंटली डाउन थे। तो सर इसका क्या रीज़न है कि इतना इतना वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं? और गोइंग फॉरवर्ड सर आपने अपनी नियर टर्म आउटलुक के अंदर मेंशन किया है कि कुछ बेहतरी आ सकती है, और जबकि जबकि मुझे मार्केट सोर्सेज से पता चला था कि आप लोगों ने प्राइजेस भी कुछ कम की हैं एंड द 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के दरमियान।
तो प्राइजेस कम करने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी आपके पास कम हुई होगी, तभी आपने प्राइजेस को कम किया है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर भी गाइडेंस दे दे और प्राइस के ऊपर भी गाइडेंस दे दे, और मार्जिन में अगर ग्रॉस मार्जिन बता सके नेक्स्ट ईयर के FY 24 के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो हमारा जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें हमने हमने रेजिस्ट किया प्राइस को कम करने से को, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि अगर हम प्राइस कम भी करेंगे तब भी हमारी सेल बढ़ेगी नहीं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ कुछ इन्वेंट्री भी थी जो महंगी पड़ी हुई थी, और कुछ एनर्जी के भी इश्यूज थे क्योंकि अभी तक वो हमारा ग्रिड मुकम्मल नहीं हो रहा था। लेकिन फ्रॉम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हमारे पास ग्रिड भी आ चुका है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी डाउन हो चुकी हैं, डॉलर भी नीचे आ चुका है। तो हमारे पास ये गुंजाइश थी कि जो मार्केट जो हमने लूज कर रहे थे अपनी प्राइस को मेंटेन कर रखते हुए, उसको अब हमने रिड्यूस कर दिया है, एंड वी आर होपिंग कि हमें अपना शेयर वापस मिल जाएगा जो कि हमने लूज किया था इन द फोर्थ क्वार्टर एंड आल्सो इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो सर गोइंग फॉरवर्ड सर मार्जिन क्या एक्सपेक्ट करें सर? हम कोई वापस 13% तक जा सकते हैं सर? मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो पिछला साल था उससे तो हम इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे, थैंक यू सर। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है हमें। अगर 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 ग्रोथ आती है सिस्टम में, देखिए ना, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट तो है नहीं है। अगर औरों के कंज्यूमर प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो हमारी पैकेजिंग मटेरियल भी बढ़ेगा, तो हमारी तो एक सेकेंडरी सेल है ना। और सर आपने कहा कि ग्रिड सर आपका सबसे चीपेस्ट है, लेकिन सर ग्रिड तो 40 रुपीज़ पर यूनिट के करीब है, क्योंकि आपको 2019 की पॉलिसी के तहत कुछ कम डिस्काउंट में मिल रहा है, इसकी वजह से आपकी जो वेटेड एवरेज है वो कम हो जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं ऑनलाइन ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ, तो आप अपने खुद माइक ऑफ करके सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, आवाज़ मेरा आ रही आवाज़ है आ आप? रही? जी जी सर, थैंक यू फॉर द ब्रीफिंग सेशन। इसमें मेरा एक सवाल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। सर एक सवाल है सर, जो आपका डॉलराइज्ड रॉ मटेरियल है जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं सर, इसकी आप कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि डॉलर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर सिचुएशन दोबारा से इसी तरह से होती है तो फिर आप किस तरह से इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं? क्योंकि मार्जिन्स उस तरह से, हम जिस तरह से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नज़र नहीं आई। तो 21 के मार्जिन थे 20% से ऊपर, तो अभी मार्जिन 10 से 9%, ये बहुत लोअर साइड पे लग रहे हैं। तो आप कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं? इंपोर्ट की जो इन्वेंट्री है उसको हम लिमिट करते हैं कोई इन बिटवीन 2 months to 3 months, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आ रही होती है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं हम रखना चाहते। क्योंकि देखिए ना, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी इतनी बढ़ गई हुई है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल रख नहीं सकते। सही है। और सर आपने स्लाइड 27 में बताया कि आप कोल आपका 70 to 75% है पावर मिक्स का, और आप उसमें लो क्वालिटी कोल भी टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी करंटली कौन सा कोल यूज़ करते हैं और आप कौन सा कोल टेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमने ये देखा है कि क्योंकि इंपोर्ट के एलसीआई वगैरह खुलनी भी मुश्किल हो चुकी थी, तो हमने ये थर कोल को ट्राई किया था, और हमारा ये ख्याल था कि विद सम स्मॉल डिफ़िकल्टी एंड मॉडिफिकेशन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और हम उसको यूज़ करना चाहते भी हैं, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। इस वक्त जो हमने बीच में अफ़गान कोल भी यूज़ किया है काफ़ी, और कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेजर कोल है वो तो इंडोनेशियन और साउथ अफ्रीकन है। सर करंट आपका पावर मिक्स क्या है इस करंट मंथ में? अभी क्या चल रहा है? अभी आई वुड से कि तकरीबन 60% कोल है और 40% गैस है। और सर गैस आपको कहाँ से कितने रेट पे मिल रही है? गैस हमने एक कंपनी से ली है जो कि सुई गैस के सिस्टम को यूज़ करते हुए हमें गैस दे रहे हैं। सही है सर।
जी सर। मैं कह रहा था कि उसमें एक छोटा सा कैच है कि वो जो उन्होंने हमें यूजीडीसी वालों ने जो हमें गैस दी हुई है $11.5 के ऊपर, उसमें एक कंडीशन है कि जो कमिटेड गैस है उसका 80% हम लाजमी लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर वी विल पे फॉर इट। तो लिहाजा कुछ गैस तो हमें यूज़ करनी ही करनी है, और बाकी हम कोला यूज़ करते हैं, और फिर आजकल हमने कुछ बायोमास भी करना शुरू किया हुआ है। सर मार्जिन्स के ऊपर कोई डायरेक्शन है आपकी फॉर फिस्कल ईयर 24? मेरे ख्याल में हमारे मार्जिन पिछले साल से बेहतर होने चाहिए, क्योंकि प्राइसेस नीचे आई हैं काफ़ी हमारे रॉ मटेरियल्स की भी, और हमारे पास भी ऑप्शन ज़्यादा हैं जो फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं थी जो अब है एनर्जी की। राइट सर, थैंक यू सो मच। सर ये थर्ड कोल का क्या इशू है, जो कह रही है थर्ड कोल का कोई इशू है? अवेलेबिलिटी का इशू है, मतलब वहाँ पे सप्लाई चेन उसकी इतनी अच्छी तरीके से बन नहीं पा रही, तो जो लोग जिन्होंने सप्लाई करना होता है उनकी कोई डिफ़िकल्टीज़ है, जब उनके पास होता है तो वो हमें दे देते हैं। और दूसरा उसका इशू ये है कि वो गीला होता है, लेकिन गीले का तो फिर ये है ना कि उसकी जो प्राइस है वो उसके मुताबिक प्राइस कम होती है गीले के होने की वजह से, तो लिहाजा वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी सप्लाई चेन अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई। और क्वेश्चन रामशा, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहेंगी? Assalamualaikum, am I audible? Yes. Sir, I have a question regarding the raw material prices. जैसा आप लोगों ने शेयर किया कि जो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं वेस्ट पेपर एंड वुड पल्प, इन दोनों की अगर आप प्राइसेस बता दें कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या प्राइसेस थी पर टन, एंड व्हाट इज योर व्यू, आउटलुक क्या है आपका गोइंग फॉरवर्ड रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर? हाँ, ये एक्चुअली जो वुड पल्प की प्राइस है वो तो इन डॉलर है, लेकिन डॉलर कहाँ होगा वो तो एनीबॉडीज गेस है, लेकिन डॉलर में हम आपसे प्राइस शेयर कर लेते हैं ना, एवरेज डॉलर प्राइस क्या है। और जो वेस्ट पेपर है उसकी भी जो लोकल प्राइस है, इट रेंजेस फ्रॉम क्वालिटी टू क्वालिटी, एंड इट इज़ फ्रॉम 40 रुपीज़ पर केजी से लेके कोई 65 रुपीज़ पर केजी है लोकल, और जो इम्पोर्टेड है वो कोई तकरीबन $135-150 पर टन है C&F। जो वुड पल्प है उसकी प्राइस, राशिद लेटेस्ट प्राइस आप बता दें। 6 लेटेस्ट प्राइस ये सर बिटवीन 650 to 700 है। 650 to 700 लेटेस्ट प्राइस है, प्रीवियसली 900 और ये 800 तक चली गई हुई थी, जो कि अब 650 पे। थैंक यू सीओ साहब। महरोज खान, आपके सवाल हैं? हेलो जी, आफ्ताब साहब, राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तकरीबन सवाल तो हो चुके हैं। सर 2-3 चीज़ें थी जो पूछनी थी मुझे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इसमें क्योंकि एनुअलाइज होती है CBS, तो काफ़ी चीज़ें पूरे साल में रह जाती हैं। सर ये बताइएगा कि जो अभी आपने प्राइस मेंशन की थी 650 से लेके $700, ये डॉलर पर टन है वुड पल्प की प्राइस व्हिच हैज बीन पीक्ड एट 800? हाँ, डॉलर पर टन। ठीक है। और सर मैं अगर जी वैसे जो आपने मुझे बताया था कि जो CNF प्राइस में अगर पीक देख रहा हूँ वेस्ट पेपर की जो मेरे पास है मौजूद, वो तकरीबन $275 पे पीक की थी। वेस्ट पेपर इंपोर्टेड की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो मूविंग फॉरवर्ड इसके ऊपर कोई आउटलुक दे सकते हैं आप इंटरनेशनली के इंपोर्टेड वेस्ट पेपर की प्राइसेस क्या डायरेक्शन रखेंगी? मेरे ख्याल में वेस्ट पेपर जो इंपोर्टेड है ना, उसमें एक्चुअली देयर इज सो मेनी क्वालिटीज वेस्ट पेपर की, तो लिहाजा थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाती है बात। फॉर एग्जांपल, एक वेस्ट पेपर है जो कि पैकेजिंग वेस्ट पेपर है, जिसको हम BBC कहते हैं,
बॉक्स बुक बोर्ड कटिंग, ये कोई 150 160 पे के ऊपर है और मेरा ख्याल है ये इसी तरह ही रहेगी। फिर कोरोगेशन होती है, जो कोरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं वो तो हम इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन ओसीसी ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, वो 175 तक चला जाता है। लेकिन कुछ वाइट मटेरियल भी होता है, जैसे वाइट प्रेस कटिंग्स हैं या क्या कहते हैं उसको, सॉर्टेड ऑफिस, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कोई 250 तक, 250 तक भी चली जाती हैं। वाइट लेजर 300 तक चली जाती है। लेकिन जो मेजर रॉ मटेरियल है हमारा जो हम इंपोर्ट करते हैं, आई थिंक इट विल होवर बिटवीन 150 टू मैक्सिमम 200, below 200. सर इसमें आपने ये बताया कि आप लोग आरबी कोड यूज कर रहे हैं, तो मे आई नो कि आरबी आप कौन सा, RB1, RB2, RB3, क्या यानी जीसीवी रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि RB1 जो है वो इट्स 6500 जीसीवी कोल, आपने अफगान कोल भी। हाँ, हम फ्लेक्सिबल हैं, मतलब हम तो कोई हमें हमारे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि RB1 यूज़ करना है या 2 यूज़ करना है। वो तो वैल्यू फॉर मनी है कि अगर हम कितने पैसे देते हैं तो हमें कितनी जीसीबी मिलती है, तो हम दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज़ इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल हम थर कोल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जीसीबी तो बहुत थोड़ी है और फिर वो गीला भी है, लेकिन इसके बावजूद वो वाइबल है बिकॉज इसकी प्राइस थोड़ी है। Okay. Thank you very much, Mehroz. Yes, it will be your last question because we have reached a time limit. ठीक है सर, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो मेरिट पैकेजिंग है, इसने अपनी लास्ट ईयर 1-2 साल पहले जो ब्रीफिंग है उसमें भी इन्होंने मेंशन किया था कि वो एक्सपोर्ट के मार्केट को टैप कर रहे हैं इन मिडिल ईस्ट फॉर द पैकेजिंग मटेरियल. So, is there any plan for Century Paper Board to tap the export market for exporting these packaging material products? देखिए, जो हमारा पैकेजिंग बोर्ड है उसको तो हमने लास्ट टाइम भी एक्सपोर्ट किया था, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट वाज लिमिटेड टू अफगानिस्तान, और उसकी वजह यही है कि हमें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ compete करने में थोड़ा सा हमारा हैंडीकैप है। तो हम ईरान बेच सकते हैं, लेकिन ईरान बेचना अभी तो इजी नहीं है। अफगानिस्तान हमने बेचा, हमने मिडिल ईस्ट में भी, दुबई वगैरह में भी कुछ बातचीत हमारी चल रही है, तो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। Thank you very much, CEO Saab and the senior management, and we also like to thank all the participants. Thank you very much for attending the CPS. Allah Hafiz.